کہ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا ایک مرتبہ پھر ریڈ لائن بیاٹی منصوبہ ٹائم لائن سے پہلے مکمل کرنے کا حکم جاری۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانا ہوگا۔ ریڈ لائن بیاٹی سندھ حکومت کے لیے اولین ترجیح ہے۔ مزید جانتے ہیں عاجز جمالی سے، جی بتائیے گا۔ جی ہاں، دیکھیں یہاں وزیر ٹرانسپورٹ اور سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے زیر ریڈ لائن بیاٹی پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ شریک تھے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ریڈ لائن بیاٹی منصوبے کے لاٹ 1 اور لاٹ 2 پر جاری ترقیاتی کام جو ہے اس کا پیش رفت اور جائزہ پیش کیا گیا، اور تمام اسٹیک ہولڈرز تعمیرات کے کام کو تیز کرنے کے لیے ٹھوس کوشش کریں، یہ کہنا تھا شرجیل انعام میمن کا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایئرپورٹ کے علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کو تیز کرنے کی ہوائی اڈے کے حکام کے ساتھ بات چیت کو تیز کیا جائے تاکہ مزید تاخیر سے بچا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریڈ لائن اپنے ٹائم لائن جو اس کا ٹارگیٹ ہے اس سے پہلے مکمل کیا جائے، کیونکہ یہ منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے، ہمیں ہر حال میں اس کو بروقت تکمیل تک یقینی طور پر پہنچانا ہے، اور سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے بیاٹی ریڈ لائن۔ جی اچھا عاجز، یہ بتائیے گا کہ پہلے کتنا ڈیلے ہو چکا ہے یہ پروجیکٹ، اور اب کیا آخری ڈیڈ لائن دی گئی ہے؟ جی یہ منصوبہ ڈیلے تو ہے، تاخیر کا شکار ہے۔ پہلے تو اس کو آنے والے سال اکتوبر تک مکمل ہونا تھا 2025 میں، لیکن یہ تقریباً 8-9 ماہ پہلے سے ہی تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ اب اس کو 26 میں جولائی 26 بتایا جا رہا ہے، تب تک جا کے مکمل ہوگا۔ اگر 26 تک بھی مکمل ہو جاتا ہے تو بہتر ہے۔ جی بہت شکریہ عاجز جمالی آپ کا۔ شرجیل انعام میمن نے ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا ایک مرتبہ پھر سے ریڈ لائن بیاٹی منصوبہ ٹائم لائن سے پہلے مکمل کرنے کا حکم جاری کیا۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ کراچی کے لیے ایک گیم چینجر ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانا ہوگا۔ جامعہ کراچی میں بنیادی سہولیات کے فقدان اور بھاری فیس وصولی پر طلباء سراپائے احتجاج۔ طلباء الائنس کے مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ہمارے مسائل کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے، اب خاموش نہیں رہیں گے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے۔ آج بالکل دیکھیں، اس وقت میں موجود ہوں جامعہ کراچی میں، اور جامعہ کراچی میں طلباء الائنس کی جانب سے احتجاج جو ہے وہ اس وقت ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ طلباء کی جانب سے اس سے پہلے ایڈمن بلاک میں احتجاج کروایا گیا تھا، جبکہ یہ طالب علم جو ہے ایڈمن بلاک کے احاطے کے اندر بھی داخل ہوئے۔ وائس چانسلر سیکریٹریٹ کے باہر بھی انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور گزشتہ 3-4 روز سے یہ احتجاج جو ہے اسی طریقے سے جاری ہے کراچی یونیورسٹی میں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں جو ایک فقدان، انتظامی مالی فقدان جو ہے پیدا ہو چکا ہے، تو اس کے حوالے سے انتظامیہ فی الفور ایکشن لے۔ اس کے علاوہ جو ری ایڈمیشن کے نام پر زائد فیسیں جو ہیں طالب علموں سے وصول کی جا رہی ہیں، تو اس کو فی الفور جو ہے بند کیا جائے۔ اس وقت میرے کیمرامین حارث اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے ملاحظہ کر کے دکھا سکیں کہ یہ سلور جوبلی کا مقام ہے، اور یہاں پر طلباء الائنس کی جانب سے احتجاج جو ہے یہاں پر ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ یہاں پر دھرنا بھی دیا جا رہا ہے، ہاتھوں میں بینرز آویزہ کیے یہ طالب علم اپنے حق کے لیے جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں۔ طلبہ تنظیم کے نمائندگان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلباء الائنس کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے، آج بڑے پیمانے پہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، یہ لیکن معاملہ جو ہے ابھی تک تھما نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل، ہم گزشتہ 4 روز سے یہاں موجود ہیں۔ پہلے ہم ایڈمن بلاک پہ احتجاج کرتے رہے، پھر ہم نے فارمیسی چوک بند کر دیا، اور ہم سلور جوبلی بند کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ ہم یونیورسٹی روڈ بھی بند کریں گے، اور جامعہ بند کرنی پڑی تو اس سے بھی ہم نہیں رکیں گے۔ ہمارے سادہ مطالبات ہیں، طلبہ کو ان کے حقوق دیے جائیں، جائز مطالبات ہیں۔ 50,000 طلبہ و طالبات کے لیے 27 پوائنٹ ناکافی ہیں۔ لیٹ فیس 50% جو لگا دی گئی ہے، یہ ظلم ہے طلبہ و طالبات پہ۔ ری ایڈمیشن فیس کے نام پہ بھتہ وصول کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور ہم کسی بھی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ لے کے جائیں گے۔ پرامن احتجاج یہاں پہ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت طالب علموں کا ایک ہجوم ہے۔ طلباء الائنس کی جانب سے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے حق کے لیے جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے
से अब तक जो है इनसे कोई रुजू जो है वो नहीं किया गया है, और इनका ये कहना है कि ये पुरअमन तरीके से अभी एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अगर इंतजामिया ने इनके मुतालबात को पूरा नहीं किया तो ये यूनिवर्सिटी रोड को भी ब्लॉक कर सकते हैं और आगे जाकर गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस के बाहर जाकर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जी, पीआईए मेज़बानों के कनाडा में स्लिप होने के वाक़यात ना थम सके। पीआईए का फ़ज़ाई मेज़बान मोहसिन रज़ा कनाडा में स्लिप हो गया। स्लिप होने वाले फ़ज़ाई मेज़बानों की मजमूई तादाद 10 से ज़ायद हो गई। पीआईए मेज़बानों के कनाडा में स्लिप होने के वाक़यात न थम सके। पीआईए का फ़ज़ाई मेज़बान मोहसिन रज़ा कनाडा में स्लिप हो गया। स्लिप होने वाले फ़ज़ाई मेज़बानों की मजमूई तादाद 10 से ज़ायद हो चुकी है। कराची प्रेस क्लब पर सिविल सोसाइटी की ख़वातीन। सिंध हाई कोर्ट 26वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा। बिल्कुल, जैसे कि मौजूदा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज अदालत ने वकला की दरख्वास्त जो है मुस्तरद की थी, उस पर आज अदालत ने जो है तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। आपकी आईनी तरमीम मफरूज़े पर मबनी है, जबकि पार्लियामेंट को जो है कानून साजी करने का भी अख्तियार है, ये भी कहा गया। साथ ही साथ मौजूदा आईनी तरमीम जो है वो आज अदालत ने मुस्तरद कर दी थी, और उसी में अदालत ने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का जो है वो अख्तियार है। पार्लियामेंट करे उसके बाद ही जो उसको चैलेंज किया जा सकता है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार जो है वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं, जबकि कैबिनेट की जानिब से मौजूदा आईनी तरमीम का मसौदा बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के साथ शेयर करने से मुतल्लिक़ कोई कानून पेश भी नहीं कर सके। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक पार्लियामेंट और सेनेट में आवाम के नुमाइंदे बैठे हैं। मौजूदा आईनी तरमीम पब्लिक करने से मुतल्लिक़ कोई कानून भी नहीं किया गया है। अदालती फैसले के मुताबिक कानून साजी से मुतल्लिक़ आइन का आर्टिकल 70 से 77 तक मौजूद है, जबकि अदालत इस तरह के मामला में मुदाखलत नहीं कर सकती है, खासतौर पर कानून साजी से मुतल्लिक़ मामला में, जब तक कोई गैर कानूनी चीज़ नजर नहीं आती। अदालती फैसले के मुताबिक अदालत ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि जब तक कोई मसौदा कानून बन नहीं जाता उस वक्त तक उसको आईनी या गैर आईनी करार दिया नहीं जा सकता। जी, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। शाह फैसल टाउन में रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन और उनके अहले खाना में चेक्स भी तकसीम किए गए। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी, बल्दियती जो मुलाजमीन हैं उनकी बदकिस्मती ये है कि कई बरस से KMC के मुलाजमीन हो या टाउन हुकूमतों के, उनके जो वाजिबात हैं रिटायरमेंट के बाद उनकी अदायगी जो है एक मामा बनी हुई है। KMC की अगर बात की जाए तो 12.5 अरब रुपए के वाजिबात हो चुके हैं। इसी तरह टाउन हुकूमतों में भी सूरत हाल गंभीर है। शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर खटक का कहना है कि जब उन्होंने चार्ज संभाला तो 8 करोड़ रुपए की इस मद में लाइबिलिटी जो है वो उनको विरसे में मिली थी, उसकी बतदरीज अदायगी जो है उनकी जानिब से की गई है। इसी सिलसिले में आज एक तकरीब भी मुनक्किद की गई है, इसका अहवाल वो उनसे ही जानते हैं। गौहर खटक साहब, फरमाइएगा कितनी अदायगी आप कर चुके हैं और कितनी मजीद करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं जब टाउन के चेयरमैन की सीट पे बैठा तो सबसे पहले मेरे पास अकाउंट वाले और रिटायर मुलाजमीन आए। जब मैंने पता किया तो तकरीबन 8 करोड़ रुपए से ऊपर के बकाए जाते जो 2018 से उनको नहीं मिले थे। 23 में हम आए हैं, 23 के एंड में, और 2018 से उनको पेमेंटें नहीं मिली थी। उसमें बहुत सारे लोग फौत हो गए थे और बहुत सारे लोगों के बच्चों की शादियां थी, किसी के मकान किराए के थे, कोई बीमार था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो इसमें मैं अपने अकाउंट डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बड़ा किरदार था। और 8 करोड़ रुपए में से हम कोई 4.5 करोड़ रुपए पे कर चुके हैं। 2 करोड़ रुपए मैं आज दे रहा हूँ और इंशाल्लाह बाकी भी कोशिश होगी कि इनको जल्दी करूं पे। लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं 8 करोड़ तो पेमेंट कर रहा था, साथ में 1 साल में 40-50 लोग और रिटायर हो गए। अब वो पेमेंट भी मैं कोशिश करूंगा कि 2 साल के अंदर इनको सबको क्लियर कर दूं। अच्छा, कोई ऐसा मैकेनिज्म आप बनाकर जाएंगे कि मुस्तकबिल में भी जो है ये लायबिलिटीज जन्म ना लें और हाथ के हाथ जो है हकदार को उसका हक मिलता रहे? मैं यहाँ आपकी तवज्जुह से और मीडिया पे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं जब तक रहूंगा
तो मैं जो बकायाजात होंगे वो क्लियर करके जाऊंगा। मेरे बाद कौन आता है, वो क्या करता है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और मैं इनसे ये कहूंगा कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आपके बकायाजात पूरे आपको अदा कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इतना आसान काम है। हमें फंड कहीं से मिल नहीं रहे, हम टैक्स जमा करके उसमें तरक्याती काम भी हमें कराने हैं, ऑफिस के खर्चे भी चलाने हैं और इनको भी पेमेंट करनी है। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारी नीयत है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और मैं अपने टर्न में इनको, इनके जितने जो मेरे होते हुए रिटायर हो रहे, कोशिश ये है कि उनको भी मैं क्लियर कर दूं। आने वाले रिटायर्ड मुलाजमीन को खुशखबरी सुना रहे थे गौहर खटक, और उनका कहना ये है कि ऐसा मैकेनिज्म बना के जाएंगे कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके वाजिबात की अदायगी जो है वो बर वक्त यकीनी बनाई जा सके, ताकि माजी की तरह दीगर मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन की तरह उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी। शहर कायद के बच्चों में खुन्नाक की केसेस में इजाफा होने लगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद असगर के मुताबिक ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आम तौर पर नाक और गले की झिल्ली को मुतासर करता है। 5 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद इसका शिकार होते हैं। मज़ीद जानेंगे फरहान खान से। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो डिप्थीरिया के केसेस एकदम से इजाफा देखने में आ रहा है। क्या बीमारी है, किस तरीके से ये जो है वो बच्चों में लगती है, इसकी क्या अलामतें हैं और किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद असगर मौजूद हैं। डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका बचाव तो बहुत आसान है। उसमें सबसे पहले तो जो हम EPI के वैक्सीन कराते हैं, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें एक ज़रूरी वैक्सीन होती है जो तकरीबन 1.5 महीने से 2 महीने और 2.5 महीने से 3 महीने, 3.5 से 4 महीने के दरमियान 3 डोज लगते हैं, जिसको हम DPT कहते हैं। DPT डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। तो डिप्थीरिया का टीका उसमें दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को ये 3 डोजेस मिल जाएं तो उसको वैक्सीन और उसकी हिफाजती तदाबीर पूरी हो जाएंगी और उसको कभी भी डिप्थीरिया की बीमारी नहीं होगी। अगर कोई बच्चा मिस कर जाता है और वो वैक्सीन नहीं लगती किसी भी वजह से, तो फिर वो बच्चा डिप्थीरिया का शिकार हो सकता है। अब डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया एक सांस की बीमारी है और बहुत ज़्यादा जानलेवा है। और अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान बच्चे को हो जाए, ये उमूमन 5 साल से कम बच्चों में और 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको हो सकती है, क्योंकि इनमें जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है इस उम्र में, तो उसमें कोई भी जो है मतलब बीमारी लगने का चांस ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने आपको तफसीली बताया कि ये डिप्थीरिया बीमारी किस तरीके से जो है वो कम उम्र बच्चों को लगती है, कितनी खतरनाक ये साबित हो सकती है। साथ ही साथ दूसरी जानिब वैक्सीनेशन जो वो इसकी बचाव के लिए बेहतरीन है। लोगों में शऊर इस चीज़ का उजागर करना होगा कि अगर किसी को डिप्थीरिया बीमारी लगती है तो उसमें जो वो उसको वैक्सीन जो है वो लाजमी लगवानी चाहिए। साथ ही साथ इसकी अलामतें क्या हैं वो भी बताएं और किस तरीके से इस बीमारी से बचाया जाता है। जी। चीनी तिजारती वफ़द का FPCCI का दौरा, मुलाकात में बाहमी अमूर और दो तरफ़ा तिजारत पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के क्रॉस बॉर्डर ट्रेड डेवलपमेंट के सदर ने कहा कि चाइना पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी रखता है। कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत के 10 शोबों में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अशरफ खान से। जी, यहाँ पे देखा जाए चीनी तिजारती वफ़द का FPCCI का दौरा हुआ है। चीन से आए हुए तिजारती वफ़द ने कराची में FPCCI के अहदेदारान से मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी अमूर और 2 दफ़ा तिजारत पर तबादला ख्याल किया गया है। और चीन के क्रॉस बॉर्डर ट्रेड डेवलपमेंट के सदर जो हैं जिंग जूहू ने वफ़द की सरबराही की है। उन्होंने कहा है कि चाइना पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी रखता है और ये भी कहा है कि साथ ही पाकिस्तानी मसनूआत के 10 शोबे में सरमायाकारी के ख्वाह हैं, और कहा है जिसमें एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, चिकन और गोश्त की डिमांड ज़्यादा है। और चीन जो क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट में देखा जाए कि 2 तरफा तिजारत बढ़ेगी तो दोनों ममालिक का फायदा होगा। और यहाँ 5 चीज बिजनेस जो फोरम के चेयरमैन है शबीर मंशा का कहना था कि 2 तरफा तिजारत के फरोग से कारोबार और रोजगार के नए मौके मिलेंगे। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। और शबीर मंशा का कहना है हुकूमत से हुकूमत के दरमियान प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुके हैं। $2 अरब से जायद के प्रोजेक्ट आयरन और स्टील से मुतल्लिक हैं और आयरन ओर की माइनिंग में $2 अरब से जायद के प्रोजेक्ट में ज्वाइंट वेंचर करने की जरूरत है। और ये भी कहा है कि पाकिस्तान में जेम्स के शोबे में भी सरमायाकारी के बहुत से मौके हैं और पाकिस्तान में जेम्स के शोबे में, प्रोसेसिंग के शोबे में बड़ी सरमायाकारी आ सकती है। जी
जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम ने खुशाइन करार दे दिया। सदर सरदार शौकत पोपलजई कहते हैं कि ये दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। कॉन्फ्रेंस से न सिर्फ मुल्क में तिजारत और कारोबार को फ़रोग मिलेगा बल्कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारी में इजाफे का रुझान पैदा करने की राह भी हमवार हो सकेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं याज राना से। जी आगाह कीजिएगा। अब एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, ख़ासकर जो ये रीजन है जिसको हम कहते हैं साउथ एशिया का, ये एक बड़ा रीजन इस वक्त माना जा रहा है। इसकी शंघाई ताउन तंजीम की पहली बार कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है। इसके क्या सद्देबाब निकलेंगे, इसके क्या इकनॉमिक के ऊपर हमारे इस वक्त जो है असरात होंगे, हमारे साथ जानने के लिए बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट मौजूद हैं सरदार शौकत पोपलजई साहब से जानते हैं। सरदार साहब, बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, कैसा देख रहे हैं? खासकर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और इन चीज़ों में सी पैक की बातें हैं, शंघाई ताउन तंजीम की पहली बार बड़ी कॉन्फ्रेंस है, क्या अचीव करेगा पाकिस्तान? तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। दूसरा, जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है इस रीजन में, वो लोग दुनिया समझती बड़ी वोल्टाइल है और टेररिज्म के हवाले से, सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि पाकिस्तान जो है वो बड़े पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहता है और पीस प्रिवेलिंग सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है। तो सबसे बड़ा आप देखें कि पॉजिटिव ये हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आ रहे लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर जो आ रहे हैं, तो दैट इज़ अ मैसेज दैट जो रिवाइलरीज हैं उनको भी सेटलमेंट का मौका मिल रहा है। तो इसके अंदर फिर स्ट्रेटेजिक डेप्थ में आप देखें, मैं अपने सूबे के रेफरेंस से बताऊं कि जो ग्वादर पोर्ट है, जो हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जी सेंट्रल एशिया तक उसको रसाई होनी चाहिए, सेंट्रल एशिया को इंटरनेशनल ट्रेड में केटर करे, तो ऐसे इवेंट से वो बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट उसमें मिलेगा। शौकत साहब का जैसे तफसीलन बताना है कि ये एक ऐसा फोरम होगा जिसपे दुनिया को ये बात वाज़ेह तौर पे बाबर कराई जाएगी कि पाकिस्तान जो है वो खुद मुतासिर है इस वक्त टेररिज्म का, और उसको लेते हुए जो हम चाहते हैं कि हम एक इकनॉमिक फोरम के ऊपर बड़ी तरीके से अपनी तब्दीलियां लाएं, उसके अंदर जो टेररिज्म हमारे बीच में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है उसके ऊपर बात की जाएगी। तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स जो इस मुल्क, जो 8 ममालिक इसमें शामिल हैं, इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक होगी जिसके अंदर पूरी दुनिया की नज़रें होंगी, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ होगा जब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है ताउन तंजीम की जो ये कामयाब कॉन्फ्रेंस होगी, यकीनन एक बड़ा मैसेज दुनिया की तरफ पाकिस्तान देने जा रहा है। जी, लियारी टाउन इंतजामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली और प्रॉपर्टी सर्वे का काम शुरू कर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद ND खान का कहना है कि इस हवाले से मजीद बताते चलें कि 3 माह में सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। टैक्स वसूली का इख्तियार महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से टाउन हुकूमतों को मुंतकली के बाद लियारी टाउन ने इसकी वसूली का आगाज कर दिया है। म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद ND खान कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे भी शुरू कर दिया है जो 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। लास्ट सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ था वो 2012 में हुआ था, तो गालिबन इसको 12 साल हो चुके हैं और हमने एक फ्रेश सर्वे कंडक्ट करने के लिए टीम बना दी है और 1 महीने से हमारा सर्वे जारी भी है। इसमें टाइम लगेगा ऑब्वियसली क्योंकि 12 साल के दौरान इमारतें भी खड़ी हो गई, लोग भी, आबादी भी बढ़ गई, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स हम अपना पूरा कंप्लीट सर्वे कंप्लीट करके, और साथ साथ हम अपना काम भी शुरू कर रहे हैं जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन हमने शुरू कर दिए। डायरेक्टर प्रॉपर्टी टैक्स वसीम राजपूत बोले कि टैक्स वसूली के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की मुआवनत से काम जारी है, जबकि अमले ने काम की तफसीलात से आगाह किया। एक्साइज की टीम हमारे पास आई है, हमने रिक्वेस्ट करी थी, MC साहब को हमने किया था, उनके थ्रू हम लोग वहाँ पर गए थे, तो उनकी डायरेक्शंस की वजह से फिर एक्साइज की टीम हमारे साथ अलाइन हुई है। उन्होंने अपनी टीम भेजी है हमारे पास, वो पूरी टीम यहाँ पर हमारे पास आई है और उन्होंने आके हमें जो भी प्रॉब्लम से जो थोड़े बहुत थे वो उसको रिजॉल्व करके दिया है। अब हमारा सॉफ्टवेयर अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल ओके चल रहा है। 3 हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, और इन डायरेक्टर्स, वो जो डायरेक्टर्स हैं वो बेसिकली फॉलो अप लेते हैं। हमारी यूसीज हैं वो हमने उनको वार्ड वाइज हमने जो उनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद जब हमने उनको वार्ड वाइज किया है तो हम इसी तरीके से उनका फॉलो अप लेते हैं। हमारे साथ कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो इंस्पेक्टर्स हमारे साथ
कोऑपरेट करते हैं, हम फिर जो है वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली दुरुस्त सिमत में की गई तो आवाम के मसाइल के हल के लिए वाफिर मिकदार में फंड्स दस्तयाब होंगे। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।